record. And see, sometimes the lecture will go a little bit longer, huh? So please don't get hesitated and don't get panic. थोड़ा सा longer भी चल सकता है lecture, तो please help me to help you. So second thing is what? As you can see here, मैंने आप लोगों को कल बताया था singulars and plurals. Rule number 1 we have seen yesterday that the nouns which are ending with hissing sounds like sir, sh, x, z, ch and o, the plurals are going to end with es. जो भी ऐसे नाउन है जो कि हिसिंग साउंड के साथ में एंड हो रहे हैं उसका प्लूरल क्या रहेगा? es के साथ में एंड होने वाला है. फॉर एग्जांपल ब्रश एंडिंग विद श, प्लूरल विल बी व्हाट? es. ब्रश ब्रशेस. इंच एंडिंग विद च, इंच इंचेस. बॉक्स एंडिंग विद स, बॉक्स बॉक्सेस. बस एंडिंग विद स, bus buses. Class classes. Church churches. Watch watches. Mosquito mosquitoes. Fox foxes. Cargo cargos. Hero heroes. Potato potatoes. So this is what rule number 1 we have seen yesterday, right? Any doubts, Miss Supriya? Hello? I hope all of you are alive and kicking over here. Okay? So this is what the first rule. The nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. Next one, we have seen some of these exceptions. For example, the nouns which are ending with o, plural can be s or as well as es. For example, mango, mangoes, mangoes, mosquito, mosquitoes, mosquitoes, zero, zero, zeros. Okay. Next one, we have seen also the nouns which are ending with o, plural can be ending with only s. For example, kilo, kilos, rhino, rhinos, zoo, zoos, kangaroo, kangaroos, video, videos, cuckoo, cuckoos. Okay. Next one, we have seen number 2, rule number 2 as well yesterday, and that was what? The nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves. For example, leaf, leaves, wife, wives, half, halves, knife, knives, wolf, wolves, thief, thieves, etc. Correct? These are the nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves only. Next one, we have seen also the nouns which are ending with f, plural will be ending with s or ves. For example, dwarf, dwarfs, dwarves, scarf, scarves, scarves, hoof, hoofs, hooves. Okay. Next one, exceptions of the rule. What is the first rule of English? What is the first rule of English? What is the first rule of English? Turkey. Allah. मैडम मेरे को मर्डर करते क्या अभी आप? Rules are made to be broken. Rules are made to be Broken. broken. ये तो पहला रूल है. इंग्लिश में हर रूल टूटता है. What is the second rule? Exceptions. Exception don't make a rule. Correct. Exceptions don't make a rule. Exception rule बनाते ही नहीं है. यहाँ पे है. Yes. सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए समझ में नहीं आया. मैंने पूछा what is the first rule of English? अच्छा, मुझे सुना ही दिया कि origin of English क्या है. No. Okay, exception क्या था यहाँ पर? The nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with only s. For example, chief, chiefs, cliff, cliffs, roof, roofs, giraffe, giraffes, etc. Any doubts? तो यहाँ पे हमारा कल तक हुआ था that हम लोगों ने कल 2 rules देखा था. Any doubts, Miss Supriya? No. So simple rule is there. The nouns which are ending with hissing sounds, plural will be ending with es. The nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves only. All right. Let's go towards our rule number 3. Very easy rule, and that rule is saying the nouns which are ending with y, plural will be ending with ies only. अब यहाँ पे rule क्या बोल रहा है? The nouns which are ending with y, plural will be ending with ies only. अभी जितने भी नाउन्स है जो कि y के साथ में एंड हो रहे हैं, आपको ऐसा कोई भी वर्ड मिला जो कि y के साथ में एंड हो रहा है, we are going to put their ies in the plural. For example, baby, plural will be babies. ies के साथ में एंड होने वाला है वो. Getting it? The nouns which are ending with y, plural will be ending with ies. ies. Getting it? Baby, babies. See, ending with ies. Okay? For example, family, ending with y. Yes or no? Plural will be what? Families. Getting it? Family. So the nouns which are ending with y, plural will be ending with ies. Family, families. Next one, battery. Battery ending with y, plural will be what?
Battery. Correct. Okay. IES. Battery, batteries. Getting it? Fly, flies. For example, baby, babies. Army, armies. Lady, ladies. City, cities. Fly, flies. Body, bodies. These are the nouns which are ending with Y, and plurals are ending with IES. Ending with Y, plurals are ending with IES. Any doubts? Very simple. That the nouns which are ending with Y, plural will be ending with IES only. For example, fly, flies. Lady, ladies. Baby, babies. Army, armies. City, cities. Body, bodies. Now let me give you some more examples so that you can understand it well. For example, अब इसके अलावा कुछ और दूसरे words भी हैं. For example, country. Country, the word is ending with Why? Y, and plural will be what? Countries. Correct. It will be ending with IES. Simple. अभी आप लोगों को कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा. The words which are ending with Y, plural will be ending with IES. Country, countries. City, cities. Battery, batteries. Family, families. Baby, babies. Army, armies. Fly, flies. Lady, ladies. City, cities. Country, countries. Can you please give me some words which are ending with only Y? कोई word है? Copy, copy. Correct. Copy. If you see, what is the plural form? Copies. IES. Copy will become copies. Why? Because ending with Y. Copy. The word copy is ending with Y, and plural will be ending with IES. Study. Coffee. Coffee. So coffee. Coffee is not ending with Y. Study. Correct. Study. Study. Hobby. Hobby. Hobbies. Correct. For example, if you see Army. hobby. Hobby word is there ending with Teddy. hobbies. Teddy. Teddies. Correct. Teddy, teddies. We can say. Sir, Study, army. studies. Army, armies. So these are the words which are ending with Y, and plural will be ending with IES. Any doubts? No, No. sir. So very Sir, simple. army का plural क्या होगा? Army का armies होता है plural. For example, army, plural is what? Armies. Army, armies. Ending with Y, plural will be ending with IES. Simple. Okay? So army, armies. Now exception of this rule. अब यहाँ पे भी exception आया है rule का. Exception क्या बोल रहा है? The nouns which are ending with AY, OY, and EY, plural will be ending with only S. अब यहाँ पे exception बहुत अच्छा exception है. ये exception को भूलना नहीं. अच्छा exception है, काम में आने वाला exception है. The exception is saying the nouns which are ending with AY, OY, and EY, plural will be ending with only S. For example, boy, ending with Boys. Boy. Boy. correct, ending with OY, and plural will be what? Only Boys. S. only S. उसके अंदर ज्यादा एडवांस चले नहीं करना है. Ending with OY, plural will be only S. Boy, boys. For example, tray. The word tray is ending with Trace. AY. Trays. correct. Ending with AY, plural will be what? Only S. Trays. Tray, trays. For example, key. The word key is ending with Keys. EY. Yes or no? Ending with EY, plural will be what? Only S. Key, keys. So these are the nouns which are ending with AY, OY, and EY. Plural will be ending with only S. Okay? For example, car. tray ending with AY. Pardon? Sir, car का क्या होगा? Car. क्या? कार का कार्स ही होगा खाली, क्योंकि वो Okay. Y के साथ में नहीं एंड हो रहा है ना. इट इज अ सिंपल वर्ड, इट इज अ रेगुलर नाउन. जितने भी रेगुलर नाउन है उसके लिए एस लगाएंगे, प्लूरल हो जाएगा. So if you see here, these are the nouns which are ending with AY, OY, and EY. Plural will be ending with only S. For example, tray ending with AY, plural will be only S. Next, key ending with EY, plural will be only S. Key, keys. Next, donkey ending with EY, plural will be only S. Donkey, donkeys. Monkey ending with EY, plural will be only S. Monkey, monkeys. Valley ending with EY, plural will be only S. Valley, valleys. Toy ending with OY, plural will be only S. Toy, toys. So whenever the nouns which are ending with AY, OY, and EY, plural will be ending with only S. That's what monkey, monkeys, toy, toys, boy, boys, jockey, jockeys. Getting it? Tray, trays, key, keys, donkey, donkeys, valley, valleys. These are the nouns which are ending with AY, OY, and EY. Plural will be ending with only S. Any doubts? No. No, sir. Any doubts? Can you please give me some good words which are ending with AY, OY, and EY?
Give me some words which are ending with only AY, OY, and EY. Y. Yes, Shy. shy is not ending with OY, OY, AY. Holiday. Correct. Very nice. Holiday, ending with Holidays. S. AY. Ending with AY, plural will be what? S. Only S. Holidays. Holiday. Day, days, holiday, holidays. Amazing. So these are the words which are ending with AY, OY, and EY. Plural will be ending with only S. Reply. S. Okay. Reply. If you see, please यहाँ पे ध्यान देना है सबने. Reply. Reply is ending with LY. I. E. Correct. Exactly. I. अभी E. S. plural क्या बनेगा इसका? Reply का. Replies. Correct. Replies. It will be ending with IES. Why, Miss Supriya? Sana? Why? Oh, मेरी रज्जो. Why? Because main rule, sir. Correct. If you see the main rule. Correct. Main rule क्या है हमारा? Ending with Y. Plural will be ending with. I. E. S. बस इतना ही ध्यान में रखना है. ज्यादा कमजोर दिमाग पे भाई ज्यादा जोर देना नहीं. ओके. मैं ऐसा मजाक कर. अरे शोएब टू हेल विथ यू. शट अप. पे टेंशन हियर शोएब. उंगलियां नहीं करना मीटिंग के अंदर. यहाँ पे ध्यान देने का. पापा. Any doubts to anyone? No. Any No, questions? sir. So the nouns which are ending with AY, OY, and EY, plural will be ending with only S. The nouns which are ending with Y, plural will be ending with only IES. All right? बहुत ही simple rule है. Let's go for the next rule. Now next rule is there. अब कुछ आज interesting rule भी आने वाले हमारे यहाँ पर. देखेंगे उसको हम लोग आगे आगे. जो कि हम लोग को पता नहीं था बचपन से. आज अपने को पता चलेगा. पार्टी करना है. Next, several words. First of all, what do you mean by several words? What do you mean by several words? Several का मतलब क्या होता है? What do you mean by several? चंद शब्द. चंद शब्द. Very nice. Several का मतलब वहां पे क्या होता है? कुछ. और उसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में many. ओके? बोल सकते हैं many. Several मतलब यानी एक से ज्यादा. ओके? Several words. अब यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है? The words which are containing several words in it, we are going to put there only S in the important word and it will become plural. S लगाना है सिर्फ important word में और वो plural बन जाएगा. बोलना नहीं है. बहुत ही simple rule है. और वो rule क्या बोल रहा है? अरे तेरी तो. Sorry. Now a rule is there that is called several words rule. Okay? अब यहाँ पे एक rule है. वो बोल रहा है कि कुछ words मिलाकर एक word बनता है. Several word का मतलब क्या है? बहुत सारे words मिलाकर एक word बनता है. For example, mother. एक word है. Yes or no? In. Another word. Law. Another word. कितने words मिलकर एक word बना है? 1, 2, 3. 3 words are making one word. Correct? Mother-in-law. Mother-in-law का मतलब क्या होता है मिस सुप्रिया? Mother-in-law means husband. सास. करेक्ट. अपनी सास. ओके? अपनी सास. तो सास को क्या बोलेंगे? मदर-इन-लॉ. अच्छा, सास को अपने इधर हिंदी में अपन इंडिया में तो अपन अम्मी बोलते हैं ना खाली. आयशा मैडम, सासू माँ को क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं कि अम्मी बोलते हैं? Mummy. अम्मी बोलते हैं ना. तो इंग्लिश में मदर इन लॉ क्यों बोलते हैं? फिर डायरेक्ट मदर क्यों नहीं बोलते हैं? हस्बैंड की मदर रहती है इसलिए. क्या रहते हैं? यस मिस साना, सास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मदर इन लॉ. ऐसे क्यों? खाली मदर क्यों नहीं बोलते हैं? रज्जो बोले मेरी अम्मी नहीं है, वो बाजू वाले के. इन लॉ मतलब ससुराल वाले. हाँ. एक्चुअली वहां पे मदर इन लॉ लॉ क्यों बोलते हैं मालूम है आपको? कानून के हिसाब से हमारी माँ है वो. बचपन से माँ रहती क्या अपनी वो? रज्जो, सास को अपने बचपन से आई क्या? नहीं ना. बचपन से सास रहती क्या? नहीं. बड़े होने के बाद में सास आती है कि नहीं? शादी होने के बाद में. तो शादी होने के बाद में मींस व्हाट, लीगली वो अपनी माँ है. वैसे खून से ब्लड रिलेशन नहीं हमारा, खाली लीगली मींस व्हाट, कानून के हिसाब से हमारी माँ है. सो मदर इन लॉ मतलब नहीं, कानून के हिसाब से माँ. Okay, so law is another word, in is another word, and mother is another word. 3 words are making one word. This is called several word. For example, nail clipper. Nail clipper. 2 words मिलाकर एक word बन रहा है. nail clipper क्या होता है? आप लोग का nail cutter होता है ना, उसको nail clipper बोलते हैं. Okay? अभी ऐसे भी इंग्लिश में कुछ words हैं जो कि
तीन वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनता है. फॉर एग्जाम्पल शू रैक. शू एक वर्ड है, रैक एक वर्ड है. शू रैक अपने घर में होता है ना शू रखने के लिए, शू रैक. सो दैट इज व्हाट शू रैक. तो दो वर्ड्स यहाँ पर, दो वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बन रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेवरल वर्ड. अब ऐसा अगर कभी वर्ड आया तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? सो वी हैव टू पुट देयर ओनली एस टू द इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट विल बिकम प्लूरल. पुट देयर एस इन द इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट विल बिकम प्लूरल. इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसके अंदर एस लगाना है प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? Mother. करेक्ट. अब अपन अगर हम लोग बोलेंगे मदर इन लॉज, सही होगा क्या कानूनों के हिसाब से? माँ नो, गलत हो जाएगा. मदर इन लॉ, नो, इट विल लुक सो नॉनसेंस. मदर्स इन लॉ, Mothers. करेक्ट. मदर इन लॉ विल बिकम मदर्स इन लॉ. सास, सासू माएं बहुत सारी है. ओके, रज्जो की 4 है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मदर इन लॉ विल बिकम मदर्स इन लॉ. Same case. For example, another word is there. That's what? Looker on. Looker is word. On is another word. Two words are making one word. That's called looker on. Several words. What do you mean by looker on? वो तमाशा वगैरह देखते मालूम है ना, आप लोगों ने देखा रहेगा बिना टिकट के, वो रास्ते पे वो बिल्ली का बंदर बिंदर का खेल दिखाता है वो, तो लोग खड़े रह टिकट लेके देखते हैं लोग, No. बिना टिकट के देखते हैं उसको, है क्या नहीं? तो उसको क्या अपन क्या बोलेंगे देखने वाले को? लुकर ऑन. अभी अपने आजू बाजू में झगड़े होते ना, तो झगड़ा देखने के लिए अपने इधर लोग आते, मार मार मार, है क्या नहीं? तो लोग उधर पैसे देके आते क्या झगड़ा देखने के लिए? नहीं. तो जो लोग खड़े रहते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? लुकर ऑन. नाउ व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लुकर ऑन? Lookers on. करेक्ट. कैन वी से लुकर ऑन्स? नो. No. That's what plural will be what? Lookers on. Lookers on. Looker on will become lookers on. Okay. Next one. Nail clipper. What is the plural of nail clipper? Nail Nail clippers. Nail clippers. Nail Clippers, nail clippers. गलती नहीं करना यहाँ पे nails बोलकर. Okay. क्योंकि nail clipper अपन वो main clipper के बारे में बात कर रहे हैं. Yes or no? So the important word is what? Clipper. Clipper is the important word. Put there s and it will become plural. Nail clipper will become nail clippers. Shoe rack will become Shoes Racks. Shoe Correct. racks. correct. Shoe rack will become shoe rack. Okay. Another word is there. Letterbox. Letterbox होता है ना आपका. What is the plural form of letterbox? Letter boxes. Correct. Letterboxes. यहाँ पे es क्यों लगाया है? Miss Supriya, why es is there? X hissing sound आया ना उस X. Hissing sound है वहाँ पे, x है hissing sound, इसकी वजह से अपन वहाँ पे क्या लगाएंगे? Only es. Any doubts to anyone? Sir, हाँ, letter sir. box में. Sir, letter box में Yes, ma'am. main word तो letter है ना. नहीं, ऐसा गलती Box. नहीं करना. वहाँ पे मैन एक्चुअली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके. Okay. बॉक्स के बारे में हाँ, बात एक करेंगे लेटर सर. बॉक्स है. Okay. देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक ये लेटर बॉक्स है, ये दूसरा लेटर बॉक्स है, ये तीसरा लेटर बॉक्स है. अपन लेटर के बारे में बात करेंगे, बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं. Box के बारे में. करेक्ट. बॉक्स उसका इंपॉर्टेंट वर्ड है. फॉर एग्जांपल हा एक शू रॅक आहे, हा दुसरा शू रॅक आहे आणि हा तिसरा शू रॅक आहे. म्हणजे आपण शू बद्दल बोलतोय का रॅक बद्दल बोलतोय? Rack बद्दल. करेक्ट. म्हणजे रॅक त्यातला काय मेन वर्ड आहे, हाय का नाही? सो मेन वर्ड इज व्हाट? रॅक. वी हैव टू पुट द एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द मदर रूल. टंग अगर बोलेंगे मदर टंग तो उसमें मदर टंग्स. मदर टंग्स. फॉर एग्जांपल मदर टंग. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर टंग? Mother. Mother tongue. Mother. करेक्ट. मदर टंग्स. Mother tongue. करेक्ट. एग्जैक्टली मदर टंग. क्योंकि वहाँ पे माँ के बारे में बात नहीं हो रही, वहाँ पे टंग के बारे में बात हो रही है. यस और नो? सो द important word is there, mother tongue. Tongue is the important word. We are going to put that s or es according to the rule. Any doubts to anyone? Yes? No. No, sir. Questions? So whenever you have a several word, you are going to put there s or es according to the rule and it will become plural. All right, let's go for the next one. Rule number 5. Very interesting rule. बहुत interesting rule है, यहाँ पे ध्यान देना है सबने. If you see here, rule number 5 is saying foreign origin words. सी अब मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना है. ओके, क्या है वो? ध्यान देना है. कभी भी कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करने का. नेवर एवर ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज. और
डू नॉट मेक ओनली वन सिंगल मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इन इंग्लिश। कोई भी वर्ड का एक सिंगल मीनिंग बनाओ मत। अब अपने यहाँ पे होता क्या मालूम है क्या? नेल क्लिपर्स, एक नेल कटर, दो नेल कटर्स, तीन नेल कटर्स, एक नेल क्लिपर, दो नेल क्लिपर्स, तीन नेल क्लिपर्स, ऐसा है वो। ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीडेंट इन इंग्लिश? एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? हादसा। घटना। एक्सीडेंट का मतलब हादसा, करेक्ट, घटना, वेरी गुड। अभी आप लोग ने आंसर तो दे दिया मुझे, हादसा, घटना। अब फॉर एग्जाम्पल शोएब जो था अपना, प्यारा शोएब गया मांगने के लिए नंबर, ओ दीदी नंबर दो ना तुम्हारा, और उसने ऐसे बजा दिली फाड़ करके, ऐसा है ना, लाफा वाफा बजा दिली हमारे शोएब को। तो शोएब बाबा उधर आड़े टेढ़े हो गए उधर रास्ते पे ही। तो शोएब को फोन आया दोस्त का, हेलो दोस्त कहाँ है? तो शोएब ने क्या बोला, अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो गया। बोल सकता है शोएब ऐसा, मेरा एक्सीडेंट हो गया? एग्जैक्टली, बोल सकते हैं। Why? अपने इधर लोग जो है ना थोड़े एडे टाइप के हैं लोग, अपने इधर एक्सीडेंट बोले तो अपने इधर खाली सबसे पहले याद आता रोड, गाड़ी, हॉस्पिटल की खटिया, हाथ पैर खपच्ची विपच्ची टूटे हुए, ये याद आता है लोगों को। एक्सीडेंट बोले तो उन लोगों को क्या लगता है, खाली रोड पे होता है वो एक्सीडेंट होता है। एक्चुअली एक्सीडेंट का मतलब होता है घटना, हादसा, किसी ने लाफा वाफा बजा दिया अपने को, वो भी घटना है कि नहीं? हमारा रजा गया लड़की से नंबर विंबर मांगने के लिए, लड़की ने बोली जा तू तो मेरा भाई है, ये भी घटना है, नंबर नहीं दी उसने, है कि नहीं रजा? बहुत बड़ी घटना है। तो सो एक्सीडेंट का मतलब घटना होता है, वो कैसी भी घटना हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिस महक है, बेचारी ने क्या की, महक मैडम ने अब्बा को जाके बोले मेरे को पिकनिक को जाने का, अब्बा बोले बर्तन घस, पिकनिक को नको जाओ, ये भी हादसा है, ये सुनो। तो हादसा, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्सीडेंट के अंदर आप लोग लेकर आएंगे बाइक, गेटिंग इट, इंजरीज, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, गेटिंग इट, जरूरी नहीं है ऐसा। सेम केस अपने यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, उसको एक ही मीनिंग पकड़ कर बैठते हैं वो, ऐसा आप लोगों ने करना नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, अब आप लोग जो भी चीज देखेंगे, फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन फॉरेन? रियल मीनिंग क्या है फॉरेन का? आउट ऑफ द कंट्री, यस नो? यस। अरे गरीब लोग कैसे? Yes. फॉरेन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द कंट्री, sir. यस नो? Yes. यहाँ पर फॉरेन का मतलब क्या है? फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स, रूल है अब हमारा, फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स। ओके, नाउ आवर रूल इज देयर, फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स का रूल है हमारा एक, वो क्या बोल रहा है ध्यान देना है। ओके, फॉरेन अगर आएंगे तो उसका प्लूरल क्या बनेगा? फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स अगर आएंगे तो उसका प्लूरल क्या बनेगा? नाउ वी हैव सम अदर फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स। तो वैसे फॉरेन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द कंट्री, बट यहाँ पर फॉरेन का मतलब क्या है? आउट ऑफ द कंट्री नहीं है, वो है आउट ऑफ द सब्जेक्ट, आउट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, फॉरेन का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स का आउट ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हर एक लैंग्वेज का एक अलग भाषा होता है, ये सुनो, हर एक लैंग्वेज का एक अलग लैंग्वेज होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग लैंग्वेज होता है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, ध्यान देना मेरी बात पे। प्रॉपर्टी को, इसमें कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? कॉमर्स, राजा यू आर फ्रॉम कॉमर्स राइट? I'm कोई आवाज नहीं निकाल। I am also Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। अच्छा, कॉमर्स वाले प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? Sir. asset. asset. करेक्ट, एसिड बोलते हैं आप लोग, एसिड बोलते हैं प्रॉपर्टी को, करेक्ट। सेम केस, Yes, sir. वेरी गुड। प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं ना, प्रॉफिट, Yes. प्रॉफिट नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट, Community. करेक्ट, कॉमोडिटी बोलते हैं आप लोग उसको, प्रॉफिट को आप लोग बोलते हैं कॉमोडिटी, करेक्ट। सेम केस अपन बोलते हैं एरिया, एरिया अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, करेक्ट। मैथमेटिक्स का मास्टर कौन है अपने क्लास में? एनीवन फ्रॉम मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी? ओके, ज्योमेट्री में एरिया को क्या बोलते हैं? यस, ज्योमेट्री में एरिया को क्या बोलते हैं? प्रोमाइसेस,
तो अकाउंट्स में बोलते हैं आपके, सिविल इंजीनियरिंग में बोलते हैं प्रोमाइसिस, ज्योमेट्री में एरिया को बोलते हैं रेडियस। यस नो, सुना रहेगा आप लोगों ने, एरिया रेडियस, करेक्ट। ऐसा हर एक सब्जेक्ट का एक नया नया लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जांपल डिजास्टर, डिजास्टर अपन नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर एनवायरमेंट के लैंग्वेज में, साइंस में डिजास्टर को क्या बोलते हैं? फेनोमेनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनोमेनन। फॉर एग्जांपल करेक्ट। अभी इंफॉर्मेशन, रमीज, व्हाट इज इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर लैंग्वेज? collection of data. करेक्ट, डेटा होता है, सिंपल डेटा। इंफॉर्मेशन इज व्हाट? डेटा, करेक्ट। ऐसा हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग लैंग्वेज होता है, हर सब्जेक्ट का एक अलग लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बोलते हैं कंप्लेन, आयशा मैम कंप्लेन को कंपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट इंग्लिश में कंप्लेन को क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में, कंपनी वगैरह की लैंग्वेज में? मिस सना? इशू। इशू नहीं, इशू तो मसला होता है, प्रॉब्लम होता है इशू। यस मिस्टर निजाम, व्हाट इज कंप्लेन इन कंपनी लैंग्वेज? मिस सुप्रिया, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी राइट? No, sir. I'm working firm. ओके 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 ओके। यस मिस्टर रमो, करेक्ट, ग्रीवियंस बोलते हैं। वेरी नाइस मिस्टर शोएब, ग्रीवियंस बोलते हैं कंपनी में। हर एक सब्जेक्ट का एक अपना अलग लैंग्वेज होता है, उसको वहां पर बोला गया है, वहां पे फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स। अब ऐसे कुछ वर्ड्स है, उसके ऊपर रूल कैसे अप्लाई होगा देखेंगे आज के एपिसोड में हम लोग। फॉर एग्जांपल द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम इज डेटा, डेटा का सिंगुलर फॉर्म है डेटम, डेटम डेटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, फेनोमेनन फेनोमेना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, रेडियस रेडियाई, मिलेनियम मिलेनिया। ओके, इफ यू सी सच वर्ड्स आते हैं जो कि इंग्लिश से हटकर है, दूसरे सब्जेक्ट के, अगर ऐसे कोई वर्ड्स अगर आपको मिले तो उसका प्लूरल सिंगुलर कैसे पहचानना है, कैसे बोलना है, वो हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल डेटम डेटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, फेनोमेनन फेनोमेना, रेडियस रेडियाई, criterion criteria, millennium millennia. Okay, so there are some words which are from other subject. So how to identify the singular and how to identify the plural? कैसे पहचानेंगे? Now if I give you another word, spectra, ये singular के plural है? spectra, ये तो प्लूरल लग रहा है। Plural. It is plural. Yes, it is plural. Singular क्या है फिर spectra का? Spectrum. Correct, spectrum. Spectrum singular है उसका। Okay, for example, stadia. What is the? स्टेडियम ये stadia singular के plural है? प्लूरल है तो Correct, stadium. बेचारे खेल वाले Correct. समझ ही सकते हैं। Stadia जो है plural है। Now अभी इसका singular plural कैसे पहचानेंगे हम लोग? कौन सा singular है कौन सा plural है? For example, अगर आपको फ्यूचर में अगर ऐसा कोई वर्ड अगर आया आपके सामने तो आप उसको पहचानेंगे कैसा? yes, कैसे पहचानेंगे उसको? आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आंसर है, कैसे पहचानेंगे? व्हिच वन इज लास्ट plural. में ए है, Vowels. लास्ट में Vowels. Ending with vowels. ए, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जितना भी प्लूरल है वो वॉवेल्स के साथ में एंड हो रहा है, और जितना भी कॉन्सोनेंट्स है, सिंगुलर्स है, वो सब कॉन्सोनेंट के साथ में एंड हो रहा है। जितना भी सिंगुलर्स है वो सब कॉन्सोनेंट के साथ में एंड हो रहा है, और जितना भी प्लूरल्स है वो वॉवेल्स के साथ में एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल डेटम म एम इज व्हाट? कॉन्सोनेंट। फेनोमेनन एन इज व्हाट? कॉन्सोनेंट। रेडियस एस इज व्हाट? कॉन्सोनेंट। बट प्लूरल्स आर एंडिंग विथ vowel sound. Data, phenomena, R sound is there. Radii. We have seven vowels in English, right? No, 5. Okay, madam जागी है, बाकी लोग सो रहे हैं। How many vowels do you have in English? 5. पाँच अगर सात तो हो रहा है। पांच है। We have 5 vowels in English. What are those? A, आई E, A-E-I-O-U. ए ई आई A, E, I, O, U. We have 5 vowels in English, और जितना भी प्लूरल है वो सब vowels के साथ में एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, मिलेनियम, मिलेनिया, स्पेक्ट्रम,
spectra, stadium, stadii, phenomenon, phenomena, datum, data, radius, radii. Means what? The plurals are ending with vowel sounds. Any doubts? Any questions? Very simple rule. So if you have any of the words like this, so you can get them and you can put there such rule. Now, अब मैं आप लोगों को एक चीज सुनाना चाहता हूँ. Have a look here. Please pay attention. See, क्या मैं आज आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊं? Yes. जो मन करे वो सुनाइए, सब अच्छा है। Actually क्लास बहुत बोरिंग है. Sorry to say this. यहाँ पे स्टूडेंट बड़े बोर हैं, बड़े बोर टाइप के, क्योंकि वो कुछ ना मुझसे पूछते हैं, ना कुछ मैं उनको नया बता पाता हूँ. मैंने बोला तो उतना सुनते हैं, बस चले जाते हैं. कुछ अपने दिल से कुछ नया लेकर आते ही नहीं है. ये क्या है, वो क्या है, ऐसा काय को है, वैसा काय को है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है. फ्यूचर में आप लोग का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, याद रखना है. अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग फ्यूचर में कभी अगर गलती से माँ बाप बन गए, तो आपका बेटा आपको पूछ सकता है, डैड व्हाई द स्काई इज ब्लू. तो आप लोग चुप रहे, मेरे को भी मालूम नहीं है. वो डायरेक्ट जाके मम्मी से पूछ. हाँ, तो वो क्या बोलेगा जाके मम्मी को, मम्मी प्लीज चेंज द फादर. अब्बा चेंज करो, बिकॉज उनको मालूम नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है. गेटिंग इट? ना मैं अब्बा लेके आओ बाजू, प्रॉब्लम हो जाएगा रजा. गेटिंग इट? अम्मी. यस सर. और अगर अम्मी भी बोली जब मेरे को नहीं मालूम है, तो क्या बोलेगा, माँ बाप ही चेंज कर रहा था मैं मेरे. तो फिर जाके अब्बा को बोलेगा मम्मी को प्लीज चेंज कर डालो. नहीं मांगता न्यू मम्मा. अरे देयरफॉर इट्स एन ऑनलाइन क्लास. अरे क्लास तो है ना, मैं भी तो वही हूँ, मैं चेंज थोड़ी हो गया कुछ. ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, और आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी. यस. सो नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज देयर, व्हाई द स्काई इज ब्लू? स्काई ब्लू क्यों है? Because of sunshine. करेक्ट, बिकॉज ऑफ द सनशाइन. एग्जैक्टली. आधे से ज्यादा लोग जो क्लास में बैठे हैं ना, उन लोग को पता ही नहीं है कि स्काई ब्लू क्यों है. लोग बोलते हैं पानी की वजह से. पानी इतना थोड़ी है तो पानी का रिफ्लेक्शन आता है. पानी रात में भी तो रहता है, तो रात में तो स्काई ब्लैक हो जाता है, राइट? एक्चुअली स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ द सन. द सन हैज मल्टीपल कलर्स, बट द ब्लू कलर फ्रीक्वेंसी इन द सन इज मच मोर हायर एंड मच मोर देन द अदर कलर्स. दैट्स व्हाई द स्काई इज एब्सोल्युटली ब्लू. सन की वजह से स्काई ब्लू होता है. कभी पढ़ना, फ्यूचर में आप लोग को, आपके बच्चे लोग को काम में आएगा बोलने के लिए. जिस दिन आपने उनको आंसर दिया ना, वो भी बोलेगा ओह माय गॉड, माय मदर इज द जीनियस मदर, माय फादर इज द जीनियस फादर. गेटिंग इट? ऑलवेज रिमेंबर, मैं आप लोग को एक चीज सुनाता हूँ. आप लोग, मुझे लगता है ऐसा, कुछ लोग ऐसे मेरे क्लास के अंदर शायद, जिनके अंदर थोड़ा अलग टाइप का एटीट्यूड है. कौन सा टाइप का मालूम है? कौन सा टाइप का एटीट्यूड मालूम है अपने में? अपने पूना में चलता है, देखो. चलता ना यार, अरे क्या होता है इतने से यार, चलता ना यार, क्या दिल पे ले रहा तू. आपने सुना रहेगा ऐसा. कितने लोगों ने सुना है? मैंने कितने सुना है. लोगों ने सुना है कि नहीं? चलता ना यार, क्या दिल पे ले रहा है यार, इतने से उससे थोड़ी कुछ होता है. रमेश भाई सुना है कि नहीं? हाँ सुन रहा है, अभी सुन रहा है. अच्छा. हाँ. इफ यू सी देयर, ये वाला जो एटीट्यूड अगर आप लोगों के अंदर देखेंगे ना, ऐसे लोगों के साथ में पहली बात तो रहो मत. रहेंगे तो आप लोग को भी खराब कर देंगे वो लोग. ना लेट मी टेल यू वन शॉर्ट स्टोरी. एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा मैं, फिर हम लोग आगे जाते हैं. टाइनी स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है. लर्निंग समथिंग ग्रेटर फ्रॉम देयर. Once what happened, there was a war between two tribes, and all the soldiers were ready in the war ground to fight with each other. And their kings were at the fort, and they agreed with together. They compromised with together each other, and they have written a letter at the time. They had written a letter, and what they did after writing the letter, they signed the letter and they have given to the messenger. The messenger took the horse and went to the war ground. As he was heading towards the war ground, what happened? Suddenly he met with an accident and the horse has collapsed. As the horse collapsed, the messenger fell down directly on the head, and as he fell down on the head, the messenger passed away. He popped off, tapak gaya. As he passed away, there was the war in the war ground, and thousands of people died. Thousands of people have been killed in the war.
Do you know why? Because of one thing, and that is what's the worst thing, because of this attitude. आधे लोगों को शायद समझ में नहीं आया रहेगा स्टोरी, मैं हिंदी में बोलता हूँ शायद जल्दी समझ में आ जाए। एक मर्तबा जंग हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के अंदर दोनों ट्राइब के सोल्जर्स खड़े हुए थे और उनके जो किंग्स थे वो फोर्ट पर थे। वो किंग लोग में क्या हो गया भाई, सुलह हो गई। किंग में क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज होने के बाद में किंग ने क्या किया, लेटर लिखा। लेटर लिख के उन लोगों ने मैसेंजर को दिया। मैसेंजर ने क्या किया, वो टाइम पे घोड़े थे, गाड़ी तो थी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं था। तो मैसेंजर ने क्या किया, लेटर लिया, घोड़े पे बैठा, जा रहा था। वो जैसे जा रहा था तो घोड़ा पलटी हो गया। पलटी हो गया तो मैसेंजर नीचे गिरा। मैसेंजर नीचे गिरा टकले पे, तो मर गया वो। अब वो मर गया तो क्या हुआ, उधर तक के लेटर पहुंचा ही नहीं। और उधर सोल्जर लोग को क्या लगा कि भाई अपने किंग को फोर्ट पे मार दिया है। उन लोगों ने एक में एक को मारना स्टार्ट किया, वॉर स्टार्ट हुआ एंड thousands of people have been killed. यहाँ के कुछ लोग मरे, यहाँ के कुछ लोग मरे, आधे से ज्यादा लोग मर गए। आपको मालूम है क्यों हुआ सब ये? बिकॉज ऑफ चलता एटीट्यूड। इधर रहते ना, चलता ना यार, अरे का इतना दिल पे ले रहा है, अरे चलता ना यार, अरे का दिल पे ले रहा तू, चलता ना। ये चलता ना एटीट्यूड है ना, बहुत बेकार है ये, रिमेम्बर दिस। क्यों? वो हॉर्स पलटी होने की वजह से वो मैसेंजर मारा। पता है आपको वो हॉर्स पलटी क्यों हुआ? पता है आपको? बिकॉज ऑफ द हॉर्सशू नेल। नीचे घोड़े की नाल होती है, मालूम है? हूफ होता है घोड़े की नाल, उसमें किल्ला देखा रहेगा आप लोगों ने, हाँ करेक्ट? तो वो जो किल्ला मारते हैं ना, तो जो किल्ला मारने वाला आदमी था उसने क्या किया, एक किल्ला कम मारा था उसके अंदर। उसने बोला चलता ना यार, एक किल्ला उसने कम मारा उसके अंदर। और क्या हुआ, हॉर्स का जो हॉर्स शू नेल था वो ढीला हो गया। वो ढीला हो गया तो हॉर्स पलटी हो गया गिरने के बाद में, है क्या नहीं? वो पलटी हो गया, हॉर्स गिर गया। वो हॉर्स गिरा करके वो मैसेंजर मर गया। मैसेंजर मरा करके क्या हुआ, मैसेज नहीं गया। मैसेज नहीं गया तो लोगों को क्या लगा, अपना मैसेज नहीं आया मतलब है नहीं, उधर वॉर चालू कर दिया। और वो वॉर की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। किसकी वजह से मरे? बिकॉज ऑफ वन नेल, बिकॉज ऑफ वन नेल। अब अपन बोले क्या चलता ना इतना सा यार, करेंगे कॉम्प्रोमाइज? No. नेवर। No, sir. ऐसा जो भी बोलेगा ना, चलता ना, अरे का इतना दिल पे ले रहा, अरे का तू मरने वाला थोड़ी यार, चलता ना, ऐसे वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं चलता ना। एक काम करता है, बड़ा तेरे को बिरयानी की प्लेट देता हूँ, उसके अंदर खाली एक ड्रॉप टॉयलेट का डाल के देता हूँ, खाएगा क्या? चलता ना, अरे चलता ना, अरे एक ड्रॉप तो है प्लीज, खाना खाना खाना, खाएगा क्या वो? No, sir. खाना प्लीज 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 मेरे लिए खाना, अरे एक ड्रॉप है बिरयानी है, खाएगा अभी? No. नहीं खाया। अभी क्यों नहीं चलता? अभी भी चलना चाहिए ना, अभी भी चलना चाहिए, अभी नहीं चलता है। Why? People are hypocrite. Getting it? तो ऐसे लोगों से दूर रहो। Now let me tell you one more thing. मैंने ये स्टोरी इसके लिए बोला क्योंकि आपको ऐसे थर्ड क्लास टाइप के लोग बाहर मिलेंगे, जब आप लोग जाकर बोलेंगे you know, I'm learning international English from UK US. Oh my God, with the accent. Really? तो आपको लोग बोलेंगे इधर देखो इंग्लिश आता है, बोले आप बोले हाँ आता है ना, सिंगुलर प्लूरल बोल रहे हैं, हाँ पढ़ रहा हूँ ना मैं, अभी पढ़ रहा हूँ, चल रहा है। What is the plural of bottle? Bottles. Wall. Balls. Speaker. Speakers. Shirt. Shirts. Laptop. Laptops. Man. मेन Men. Man का मैन होता है, ऐसा कहीं को भला? आपका दोस्त आपको ऐसा पूछेगा, ऐसा कहीं को भला? मैन का मैंस क्यों नहीं होता है, मैन क्यों होता है? Why? 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 Because there is no rule. मैंने आप लोग कल भी एक्सप्लेन किया था, लैंग्वेज किसने बनाया है? लैंग्वेज किसने बनाया है? इंसानों ने। करेक्ट, इंसानों ने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, अपने जैसे लोगों ने बनाया है। और अपन कितने अच्छे मालूम है ना अपने को? तो शिव अपन कितने अच्छे हैं ना? Yes, sir. हाँ बोल रहे, अरे जरा अच्छे नहीं अपन। सो नेक्स्ट रूल है हमारा नो रूल्स। नेक्स्ट रूल इज व्हाट? नो रूल्स। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट रूल हमारा, नो रूल्स। यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, देयर इज नो सच रूल। ओके, नेक्स्ट रूल इज व्हाट? नो रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग को लोग क्या बोलेंगे, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या आता है? मेन। व्हाई? व्हाई देयर इज नो रूल? ओके, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड, Children. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। सो चाइल्ड, चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे एडे लोग मिलेंगे यहाँ, ए मेरे को ये बोल के बता जरा, ये क्या लिखा है? कट। ये क्या लिखा है? Bird.
ये क्या लिखा है? Not. Not. ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है फिर? Put. Put. देखो इधर क्या था? Put. बट, न नट, म मड, पट होना चाहिए था, है कि नहीं? ऐसा है को भला? There is no rule. Correct. There is no rule. Any doubts? So there is no rule. Any doubts? No, sir. एड़े लोगों से बाहर जाके भिड़ना नहीं, उसको बोलने का तू जा रहे। तो ऐसे एड़े लोगों से मिलना नहीं। क्यों? बिकॉज वहां पे ब्रिटिश लोग खुद बोलते हैं यहाँ पे कोई रूल वगैरह। नेक्स्ट रूल इज व्हाट? नो रूल। फॉर एग्जांपल, मैन मेन, टूथ टीथ, वुमन विमेन, गूज गीज, चाइल्ड चिल्ड्रन, माउस माइस। मींस व्हाट? देयर इज नो No. रूल। एनी डाउट्स? No, sir. No. There is No, sir. Man, men, tooth, teeth, woman, women, goose, geese, child, children, mouse, mice. There are some words which has no rule. अभी आपने वो समझेगा कैसे? Only one trick. What is that? कैसे समझ में आएगा फिर? रीडिंग। जितना आप लोग रीडिंग करेंगे उतना आप लोगों को आएगा। रमेश, गाली आती है आपको? Yes. हाँ, एकदम लेटेस्ट वाली भी आती है ना? Yes. जो अपने को आती है ना? अपने पास तो 2022 का Yes, sir. एडवांस में आया है। तो मींस व्हाट? गाली कैसे आती है आपको? सुन सुनकर। यस नो? सुन करेक्ट। आप लोगों ने डिप्लोमा किया था क्या गाली का? नहीं, पर सुन सुनकर आती है। सेम केस इंग्लिश में भी आपको क्या करना है? लिसनिंग एंड रीडिंग। मैंने आप लोग को आज होमवर्क दिया ना, लिसनिंग एंड रीडिंग आपको डेली करना है। मैं आपको टेक्स्ट सेंड करूंगा। सो देयर इज नो रूल। नेक्स्ट रूल इज देयर, रूल नंबर 7, that some nouns are there which are singulars are equals to plural. अब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर भी वही है और उनका प्लूरल भी वही है। Singulars are equals to plural. For example, sheep, sheep, deer, deer, salmon, salmon, fish, fish. अपने इंडिया में फिश का प्लूरल क्या है? इंडिया में तो फिशेज है। हाँ, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। It is what? Fish, fish. उस दिन आपने फ्रूट, हाँ फ्रूट्स के बारे में आपने बताया, अभी अभी भी यहाँ पे भी है, मगर ये मैंने बहुत अच्छी जगह पे लिखा। आज मैं फ्लिपकार्ट पे चेक कर रहा था, उस बेचारे ने भी फ्रूट्स लिख रखा है। गलत गलत है। वो बेचारा है ना, इसके क्या कर सकते हैं उसको? अरे बेचारा मिलियनों की कमाई कर रहा है वो बेचारा। कहाँ सर उसको मेरे क्लास का एड्रेस नहीं पता ना, इसके लिए अनपढ़ रह गया हूँ। ये सही है। ओके, सो फ्रूट फ्रूट, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। अभी अपने घर पे मेहमान लोग आते हैं, बराबर ना? मिस शाइमा मेहमान आते हैं घर पे? Yes. वेरी गुड। मिस साना मेहमान आते हैं घर पे? हम लोग भगा डालते हैं। नहीं बेचारे पुणे वाले ऐसे नहीं है, देखा हमने, भगाते नहीं है, मान नवाजी करते हैं। अच्छा, हाँ देवा बहुत अच्छी करते हैं, अल्लाह उनको, मुझे तो बहुत खिलाया इन लोगों ने, किसी को नहीं खिलाया तो मुझे नहीं पता। ग्रेट। सो पर अपने क्लास के सर बच्चे वैसे नहीं, क्योंकि मेरे फी नहीं पे कर रहे हो लोग। पे करो इफ यू सी दैट एयरक्राफ्ट। Good अगर example. घर पे अपने क्या होते हैं? ये आते हैं, क्या आते हैं? मेहमान लोग आते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं उन लोग को? फल लीजिए, है क्या नहीं? हम लोग बोलते हैं फले लीजिए? नहीं. नहीं। सो फल को फल ही बोलेंगे हम लोग, यस नो? क्या फले बोलेंगे उसको? नहीं। सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्रूट इज फ्रूट ओनली. So there are some nouns in English which are singulars are equals to plural. उसका singular भी वही है, plural भी वही है. For example, sheep, sheep, salmon, salmon, deer, deer, fish, fish, aircraft, aircraft, fruit, fruit, etc. So for example, there are some words in English which are singulars are equals to plural. Okay, singulars are equals to plural. For example, sheep, sheep. अब वैसे ही अपने पास में एक word है prince. What is the plural form of prince? प्रिंस का तो प्रिंस ही बताया था। Prince. रहेगा, उसको प्रिंसेस अगर बोलेंगे तो औरत हो जाएगा फिर वो। For example, another word is there, air hostess. What is the plural form of air hostess? Air hostess. Correct, air hostess only. वहाँ पे air hostesses बोलेंगे क्या? तो पहले से इसमें ESS लगा हुआ है। Correct, means what? Ultimately it is what? Air hostess only. We can't put there. For example, another word is a waitress. 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 Correct, it will be the same. Is it going to change? No. Why? Because it is already looking like a plural form. So singular form and plural form both are the same. Any doubts to anyone?
So, waitress means लड़की होती है ना वेटर, उसको वेट्रेस बोलेंगे. अच्छा. For example, lioness, शेरनी. What is the plural form of lioness? Lioness. Correct, lioness only. Same case, authoress. What is the plural form of authoress? Authoress. Authoress only. It will be the same. Any doubts to anyone? So there are some words in English which are singulars are equals to Plural. any questions? No. No. Let's go for the last rule. Last rule है हमारा that sorry second last rule है. These are the nouns which are always plural. अब इंग्लिश में कुछ ऐसे words भी है जो कि हमेशा plural रहते हैं, उनका singular form होता ही नहीं है. अपने यहाँ पे कुछ एड़े रहते हैं, वो एड़े लोग को पता नहीं है. Sorry to say this. एड़े क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोग जान के भी गलती करते हैं. Okay. Next rule is there, rule number 8, and that is saying there are some words in English which are always plural. They don't have a singular form. For example, cattle. If you see the cattle का मतलब क्या होता है? ये तो अमेरिकन गाय लग रही है. बकरों का झुंड. करेक्ट. बकरे मेंढे, अपने ऐसे मेंढे विंडे बकरे विकरे देखो आप लोगों ने देखा रहेगा रास्ते में जाते. ये तो फोटो तो आपने इसकी पिक जो लगाई है वो तो गाय जैसी लगाई है. हाँ नहीं, गाय बकरे भैंस बीस इनका जो ग्रुप होता है उसको कैटल बोलेंगे हम लोग. अच्छा, रेवड़ है ना पूरा है. करेक्ट, राइट. तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कैटल. अभी हम लोग सिंगल गाय को कैटल बोल सकते हैं क्या? नहीं. सिंगल बकरे को कैटल बोल सकते हैं क्या? वैसे बकरे को इंग्लिश में बोलते क्या है? बक. हैं? बक. ये लिख के दिखाइए जरा. BUCK. Buck. और क्या बोलते हैं उसको? ही गोट भी बोलते हैं. ये गोट. ही गोट और डक दोनों भी करेक्ट. अच्छा, दोनों भी करेक्ट. चलिए, शुक्रिया. कैटल इज ऑलवेज प्लूरल. ओके, कैटल हम सिंगल बैल को कैटल नहीं बोलेंगे. कैटल विल बी ऑलवेज प्लूरल. व्हाई? बिकॉज इट इज द ग्रुप. नेक्स्ट वन, पीपल. पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल. व्हाई पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल? कैन आई कॉल माई सेल्फ पीपल? लोगों के ग्रुप को बोल रहे हैं ना. करेक्ट. क्या मैं अपने आप को सिर्फ पीपल बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते. No. People will be always plural. Always remember this. People will be always plural. Getting it? Why? Because at least two people will be making it people. Yes or no? अपने यहाँ पे एड़े लोग रहते हैं, उसको people को भी और क्या बोलते हैं? Peoples. सुना रहेगा आप लोगों ने. बहुत सुना है, बहुत सुना है. जो कि बिल्कुल गलत है. Peoples is already plural. People is already plural. Don't make it more plural by putting their s. So people is already plural. People का plural form already people ही रहेगा. उसको people को और हम लोग change नहीं कर सकते. All right. Next one. People. Why it is plural? Next one, binoculars. Why it is plural? Binoculars. Two eyes. Correct. दोनों आंखें. What? It's a pair. 1, 2. Pair. 1, 2. It's a pair. 1, and this is what 2. So it's a pair. That's why we're going to call it binoculars. Binoculars. 1, 2. Next one, scissors. अच्छे बड़े डॉक्टर बोलते हैं सीजर कहाँ है, सीजर का है, सिस्टर सीजर कहाँ है. Wrong. That's what scissors. Why? Because 1, 2, 1, 2. So it's a pair, and for the pair we are going to put there s. Scissors. Binoculars. Next, jeans. हमारे यहाँ पे लोग गलत बोलते हैं. जीन की पैंट. Wrong. 1, 2. If you see there, MG रोड पे लिखा हुआ रहता है पैंट. गलत. पैंट भी नहीं बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? पैंट्स. We should say there pants. Why? बिकॉज दोनों पैर में पहनते ना, कि एक पैर में पहनते खाली. आजकल तो एक वाला भी चल रहा है. ऐसे कैसे हो सकता है सर? देखा मैंने. ओह माय गॉड. तो अगर हम लोग एक सिंगल पैर में अगर पहनेंगे तो वो हो जाएगा पैंट. तो पैंट्स है तो अपन दोनों पैर में, मैं तो भाई दोनों पैर में पहनता हूँ. सो इट इज व्हाट पैंट्स. एमजी रोड पे लिखा हुआ रहता है पैंट 500. तो बेचारे फॉरेन लोग आके बोलते हैं इंडिया में, ओह माय गॉड, सी इन इंडिया पीपल आर बीइंग नेकेड फ्रॉम वन साइड. एक साइड से नंगे रहते हैं. सो पैंट इज व्हाट प्लूरल. व्हाई? बिकॉज इट्स अ पेयर. 1, 2. नेक्स्ट वन, पायजामास मींस व्हाट? नाइट सूट. 1, 2. So it is what? It's a pair, and we're going to put there only s. Okay, so it's a pair. It will be always plural, not pajama. It will be always plural, pajamas. Next, spectacles, always plural. Why? Because it's a pair. 2 eyes. Yes or no? Spectacles. Glasses. 2 eyes. Sunglasses. 2 eyes. It's a pair. Next one, trousers. 1, 2. 1, 2. It's a pair, and it will be what? Absolutely plural. Getting it? So
These are the nouns which are always plural in English. Any doubts to anyone? No. Any questions? No. to No, anyone? sir. So there are some words in English which are always plural. We can't make it singular. Okay. And if you have any questions, you can ask me. So cattle, people, binoculars, jeans, trousers, pajamas, scissors, spectacles, etc. Now my question is there to all of you. What's the difference between trousers and pants? Trousers और pants में फर्क क्या है? Yes, Both are the same. both are the same. So why trousers are called trousers and why pants are called pants? What is trouser and what is pants? Yes, Mr. Ramesh. Trouser is British word and pant is American. Correct. Very good, madam. Trousers Thanks, sir. word है and pants American word है. बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है उसमें. Getting it? बाकी कुछ फर्क भी नहीं है. ओके, बोले पैंट वो सिली हुई रहती, ट्राउजर फटी हुई रहती, ऐसा कुछ नहीं है. Both are correct. Trousers British word है, pants American word है. That's it. Any doubts to anyone? No. No, sir. ये क्लास बहुत ढीली है, हाँ, कुछ बोलते नहीं, खाली चुप पड़े हुए रहते स्टूडेंट्स. बट स्टिल फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो. कल से हमारा सेंटेंसेस फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है. एब्सेंट जो भी रहेगा बंदा बहुत ज्यादा पछताएगा. ओके, कल से मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में सेंटेंस बनाते कैसे, बेसिक सेंटेंस कैसे बनाना है. ओके, nobody will be absent. If you will be absent, then may God help you. All right, we'll see you tomorrow on time. Take care. Cheerio. If you have any questions, you can